हे गाइस, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है because I'm going to make a complete PC build for my cousin. The main purpose of building this PC is mainly high-end gaming as well as mild editing. If we want to make a gaming PC ना, it should be at least 12 generation. सही पकड़े हैं। सही समझे गाइस, we are using Intel's 12th generation Core i3-12100F. तो गाइज ये 12th जनरेशन आर्किटेक्चर तो है ही, साथ ही साथ यू गेट 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स विद अच्छा खासा स्पीड ऑफ अप टू 4.30 गीगाहर्ट्ज। Guys, no grudges with AMD, but my cousin wanted it on a Intel platform. But for gaming, AMD is little better. We wanted a total all-rounder PC, so we chose Intel over the AMD for this particular build. So आगे बढ़ते हैं guys अपने next component की तरफ, which is motherboard from Gigabyte. The model is H610M H2V2. You know ना guys, Gigabyte is a renowned brand in motherboard. Also guys, this motherboard supports 13th generation. So is it not a cool thing to have? Next component की तरफ चलते हैं, which is RAM from XPG. It is a single 16 GB stick. As I said, we are not going to compromise on performance. And keeping in mind the future upgradability, where we will put one more 16 GB RAM in future. मस्त प्लान है। It costed me around 2,800 rupees. Now coming to storage guys, again we are not compromising. It's 512 GB NVMe M.2 SSD of 3rd gen. So 3-4 गेम इसमें आराम से आ जाएंगी and still there will be a space left for keeping your other stuff. आया मजा जचा। Guys, next है अपना कैबिनेट from Ant Sports, which is ICE 211 Air. ये कैबिनेट क्या ही चीज होने वाला है. The light coming out from the front grill ना will be so pleasant because it will be coming through the mesh grill. क्या नजारा है। अभी अपने कैबिनेट को पावर देने के लिए we are using 80 plus bronze 450 watt power supply from Deepcool. It costed me around 2,800 rupees. This power supply is pretty sufficient for our build because we are not using any external SSDs or hard disks, so it will get its job done. अब बात आ गई है ग्राफिक्स कार्ड पे. Emotional touchy moment. So again here I'm not going to compromise and use any 1660 or 1650. In fact we are using RTX series 3050. As I said, this will be a purely gaming PC. Guys, now let's talk about the monitor. तुम्हारी तो निकल पड़ी है। I'm feeling so happy. We are using here 22-inch monitor from Samsung. It's a renowned brand and you know the Samsung quality, right? It's gonna last for years to come. And 22-inch के नीचे तो there is no fun in gaming. ये बड़ी अच्छी बात कही है। It costed me around 6,500 rupees. Gamepad from Cosmic Byte. You know ना guys, how fun it is to play the games on gamepad. और एक बार जिसने gamepad पे खेलना चालू कर दिया, that kid will never play on a keyboard. We are using here a basic keyboard from Zebronics. ये क्या है? रुको जरा, सबर करो। And if still someone wants to play on the RGB keyboard only, then इसकी जगह पे he can invest on the RGB gaming keyboard. Bluetooth and Wi-Fi 2-in-1 dongle from Zebronics. अभी घर पे बच्चों के पास Bluetooth speaker तो होता ही है, so it will connect both the Bluetooth speaker as well as Wi-Fi. It will get your both the jobs done. तो गाइज ये जो एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स है इसका कॉस्ट मैं टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों के पास तो पहले से होता है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, बट हाँ ये एक्स्ट्रा है। चलो अब फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं। लो गाइज ये आ गया अपना प्रोसेसर। Let me fast forward the video so as to save on your time. And हाँ ये रहा चमचमाता हुआ प्रोसेसर, and this is a new generation Intel fan which has a thermal paste pre-applied. Let's unbox the motherboard. We got one SATA cable, IO shield, and a manual in which you can find the details of the front panel connections in case you are new to the installation. This is where the graphics card will be installed. There are 2 RAM slot, M.2 slot, and on the rear side all the basic ports are available. चलो फटाफट से प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेते हैं. You can see guys there is an arrow sign on the motherboard. Similarly there is an arrow sign on CPU. Let's match them both and place it firmly on the slot and you're done. Installing the fan is fairly easy. Rotate all the pins to clockwise direction, align the pins of the fan with the holes on the motherboard, gently push down until you hear the lock sounds on every leg. Connect the CPU fan socket on its position on the motherboard. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो अभी रैम अनबॉक्स कर लेते हैं। दिखने में रैम एकदम बढ़िया है, XPG की रैम है और ये सिंगल स्टिक लगा रहे हैं हम 16 GB की, ताकि हम फ्यूचर में इसे अपग्रेड कर सकें। ये जो रैम में आपको कट दिख रहा है ना, इसको आपको मदरबोर्ड के स्लॉट के साथ मैच करना है और जब वो मैच कर जाएगा तब उसको आपको रैम स्लॉट में डाल देना है एंड देन जब तक आपको क्लिक साउंड नहीं आती है तब तक आपको प्रेस करना है एंड वंस यू हियर द क्लिक साउंड यू आर डन।
Here comes the NVMe M.2 SSD from XPG. ये 3D NAND टेक्नोलॉजी के साथ आती है. अपने बिल्ड के लिए इट इज सफिशिएंट 512 GB क्योंकि इसमें काफी सारे गेम्स के अलावा वी कैन पुट सम ऑफ आवर डेटा आल्सो. कमाल का आइटम है यार. तो गाइस देखो यहाँ पे लगेगी अपनी SSD. चलो लेट्स क्विकली इंस्टॉल इट. और ये लाइक वी सी अ कट ऑन द रैम ना, वैसे ही सिमिलरली सी अ कट ऑन SSD एंड मैच इट. एंड ये ऐसे अंदर डाल देने का मस्त. एंड लॉक साउंड आएगी आप लोगों को. एंड देन ये जो क्लिप है ना, इसको जस्ट पुट इट ऑन द होल प्रोवाइडेड एंड जस्ट प्रेस डाउन टू लॉक इट. तो लो भाई अपना कैबिनेट आ गया. ऑफ कोर्स एंड स्पोर्ट्स वालों ने पैकिंग तो बढ़िया की ही होगी. मैंने ऑलमोस्ट 4x की स्पीड कर रखी है सो दैट वीडियो डोंट बिकम लेंथी. So this is the amazing front look guys with grill in the front of RGB fans. ये कुछ ऊपर का सेक्शन है. You get almost every type of ports on the top. चलो let's open the tempered glass panel. Glass मुझे तो काफी strong feeling दे रहा है. And that is how it looks from inside. एक मैनुअल है बट मुझे पता है कि ये किसी के किसी काम का नहीं. और ये लो अब उल्टी साइड का भी कवर खोल लेते हैं बिकॉज देयर यू विल गेट द स्क्रूज एंड केबल टाइज एंड यू विल बी नीडिंग टू ओपन दिस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केबल मैनेजमेंट. तो भाई लोगों सबसे पहले पावर सप्लाई लगा लेते हैं जो कि वी आर यूजिंग 450 वैट 80+ ब्रॉन्ज फ्रॉम डीपकूल. गाइस ये हमारे बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहेगा. अगर यू फील टू कनेक्ट मोर हार्ड डिस्क वगैरह देन प्लीज गो अहेड विद एटलीस्ट 600 वैट. अब देखो इसके साथ मिल रहा है काफी बिग साइलेंट सा फैन है जो इसमें लगा हुआ है. और ये देखो दुनिया भर की आउटपुट केबल्स है. तो गाइस काफी सारे कंपोनेंट्स ऐड ऑन कर सकते हो. वैसे हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारा ग्राफिक्स कार्ड ही मेजॉरिटी ऑफ पावर कंज्यूम कर लेगा. Guys, installing power supply is also fairly easy. Just put it inside and remember to keep the fan of the power supply facing downwards. And once it is in place, just screw up. Guys, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि IOShield has a sharp edges and be careful while installing it. बात तो सही है. You need to slowly push it from inside and you will hear the lock sound when it's in position. और ये बड़े प्यार से मदरबोर्ड को अंदर उतारते हैं और स्क्रू इसका कस देते हैं. लो भाई आ गया अपना ग्राफिक्स कार्ड RTX 3050. गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि इसमें रे ट्रेसिंग एंड DLSS का भी सपोर्ट है. अब तुम लोगों को पता ही होगा कि DLSS creates the image using AI which increases the FPS but at the same time reduces the GPU usage. And जो रे ट्रेसिंग है that is a technology which makes light in video games behave like it does in real life. ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना. पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यू गेट 1 DP पोर्ट, HDMI पोर्ट एंड 1 DVI पोर्ट. और ये ऐसे ग्राफिक्स कार्ड को उठा करके सिंपली मैच विद इट स्लॉट एंड पुश डाउन. लॉक की आवाज आएगी एंड यू आर डन. अब ये जो सबसे मोटी केबल है ना 24 पिन की, इसको ये ऐसे यहाँ पे लगा दो. ये मदरबोर्ड की पावर केबल है. गाइस सारी केबल आप लोगों को मदरबोर्ड के उस साइड से यानी पीछे साइड से लेनी है ताकि अच्छा एक केबल मैनेजमेंट हो. तो ये जो देख रहे हो आप ये पावर केबल है. इसको भी अपन वहां से ऐसे पुल करके उसके डेडिकेटेड पोर्ट पे लगा देते हैं. अब ग्राफिक्स कार्ड को पावर देंगे अपन. ये जो 2 मुई केबल दिख रही है ना गाइस, इसको आपस में ऐसे जोड़ दो और 8 पिन कनेक्टर के ऊपर लगा दो. बस हो गया, ग्राफिक्स कार्ड को पावर कनेक्टर लग गया. तो ये रहा गाइस अपना फ्रंट पैनल का कनेक्शन मैंने लगा लिया है. जस्ट इसको लगाना एकदम सिंपल है गाइस. लेकिन हाँ मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड ये डिफर कर सकता है. तो आप या तो मदरबोर्ड का मैनुअल देख लो या जस्ट गूगल इट. तो ये लो गाइस फ्रंट USB और फ्रंट ऑडियो का कनेक्शन. तो ये तो एकदम सिंपल है गाइस. केबल पे और मदरबोर्ड पे दोनों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस वहां पे घुसेड़ देना. तो ये देखो गाइस सेटा पोर्ट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे 4. ये चारों के 4 खाली है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और SSD. लेकिन हाँ उसके बाजू में ये जो USB 3.2 का पोर्ट है क्योंकि इसके साथ USB 3.2 का पोर्ट मिलता है. तो उस पे अपने को ये वाली केबल लगानी है जो कैबिनेट की आ रही है जो USB 3.0 की है. तो ये रहा गाइस अपना केबल मैनेजमेंट. आई विल डू इट प्रॉपर्ली लेटर ऑन. और अभी ये बाजू का जो कवर है अपना लेट्स क्लोज इट. So guys, now let's go to my cousin's house because there only this PC is going to be set up along with the remaining unboxing of our Samsung monitor, keyboard, mouse and gamepad. So guys, we are at our cousin's house. So this is the place where this PC is going to be set up. Now let's open the 22-inch full HD monitor from Samsung. अंदर से निकल रहा है ये सबसे पहले VGA केबल, फिर ये रहा HDMI केबल, पावर अडेप्टर फॉर मॉनिटर और ये कुछ माउंटिंग स्टैंड्स के पार्ट. गाइस अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है ना तो मारो सब्सक्राइब यार, क्योंकि मैं ऐसे एफर्ट्स लेता रहता हूँ और लेता रहूंगा ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वाला कंटेंट. और भाई ये आगे हाथ में खतरनाक मॉनिटर. अवेलेबल पोर्ट्स आर VGA एंड HDMI. भाई क्या ही दिख रहा है ये मॉनिटर. फुल सिनेमैटिक टाइप है, एकदम आग लगा देगा भाई ये तो गेमिंग में. और ऊपर से साइज भी खतरनाक लपेट लिया भाई 22 इंच. इसको ये ऐसे भी माउंटेड इट ऑन इट स्टैंड एंड मॉनिटर इज जस्ट रेडी. तो ये हमने CPU का पिछवाड़ा घुमा दिया और कनेक्टिंग द पावर केबल देयर वी कनेक्टेड द HDMI केबल. अच्छी बात ये है कि वी गॉट इट फ्री विद अवर मॉनिटर. भाई ये पिछवाड़े में लगाना ना एकदम इजी पीजी है. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है.
और ये हमारा आ गया बेसिक वाला कीबोर्ड एकदम। भाई इस पे खर्चा करना नहीं करना आपके ऊपर है, बेसिक काम धड़ल्ले से करवा देगा एकदम। आपको अगर RGB वगैरह पसंद है ना गाइस, तो 1000 रुपीज तक का आ जाता है, मस्त एकदम जगमग लाइटिंग वाला, दैट यू कैन परचेज। हाँ भाई ये चीज बढ़िया है, इट्स अ ब्लूटूथ एंड वाईफाई कॉम्बो डोंगल फ्रॉम जेब्रॉनिक्स। तो मतलब मामला फुल सेट है भाई, काहे मदरबोर्ड पे खर्चा करोगे वाईफाई के लिए जब ये इतने सस्ते में मिलता है। तो वी वेंट अहेड विद दिस लिटिल येट पावरफुल डोंगल। ये हमने इसको भी दे मारा CPU के पिछवाड़े में मस्त। Let's quickly meet after installing Windows, games and editing software. हे रहा नहीं जाता। भाई कुछ इस तरह से दिख रहा है ये PC। लुक एट सम सिनेमैटिक शॉट्स। और ये लो, जिस चीज का इंतजार था वो भी आ गया। ये इसको ऐसे हमने चीर फाड़ डाला। कॉस्मिक बाइट का गेम पैड है गाइस, लुक्स आर एस्थेटिक एंड प्रीमियम क्वालिटी। दुनिया के जितने भी यूज होने वाले ना कीज वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो इसको हम रख देते हैं बाजू में। इन द बॉक्स वी गेट चार्जिंग केबल एंड वायरलेस कनेक्टिविटी का डोंगल। नाउ वी हैव कम अप टू अ लेवल दैट आई शुड शो यू द सिस्टम स्पेक्स, क्योंकि यही एक सच्चे यूट्यूबर की पहचान होती है। भाई DaVinci इज द सॉफ्टवेयर व्हिच वी आर टेस्टिंग हियर एंड बॉस, ये दुनिया का वन ऑफ द हेवी एंड बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है। देख रहे हो भाई, अपना प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर रहा है इसको। देयर इज नो लैग एंड एडिटिंग एंड प्रीव्यू मोड इज वर्किंग फ्लॉलेसली। तो चलो भाई MSI बर्नर खोल लेते हैं। भाई MSI बर्नर ही तो वो चीज है जिसमें आप लोगों को FPS दिखेगा, और जब FPS दिखेगा तभी तो मजा आएगा ना। जो भी गेम खेल रहे हो तो पता तो पड़ेगा कि कितने FPS आ रहे हैं और मजा लोगे मस्त। तो लो भाई GTA 5 चला दिया। यू कैन सी गाइज एज सून एज वी लॉन्च द गेम इट इज टचिंग 188 FPS। भाई फाड़ डाला। सो गाइज देखो अभी तो सेटिंग्स आर लोवेस्ट है ना, सो यू कैन सी कि CPU इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेयर i3 12 इज प्रेटी सफिशिएंट। हाँ, और 3050 भी अपना ओनली गोइंग अप टू 60%। और भाई एज आई सेड इट्स रियली इंजॉयबल टू प्ले ऑन अ गेम पैड रेदर देन कीबोर्ड, हेंस वी यूज्ड ओनली बेसिक कीबोर्ड। अब गाइस लेट्स डू अ फाड़ू सेटिंग, सब कुछ हाई कर देते हैं यार। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। 60 FPS तो फिर भी आ जाएंगे, तो थोड़ा ट्विक कर लेना एंड ब्रिंग अप टू दी 80 FPS वगैरह एंड देन एंजॉय द फुल HD गेमिंग। ये लो गाइस NFS मोस्ट वांटेड चला दिया, और भी गेम्स दिखा देता गाइस, देन यू नो ना गाइस द वीडियो वुड बिकम मोर लेंथी। Guys, let me know in the comment section PC कैसा लगा. Hope to see you soon in some other video. Till then, take good care of you and your loved ones.